روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک روز بہلول دربار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص علم نجوم کا ماہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہلول سلام کر کے خاموشی سے اس کے برابر جا بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ جب وہ اپنے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا تو بہلول نے کہا، حضرت ماشاءاللہ آپ کی مہارت کے کیا کہنے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ نجومی بہلول سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ بہلول مسکرایا، اگر آپ اپنے برابر بیٹھنے والے کو نہیں جانتے تو پھر آسمان کے ستاروں کے بارے میں کس طرح جاننے کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ شخص لاجواب سا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ دربار ابھی منعقد تھا کہ جارجیت نے صدا دی کہ کوئی سیاح حاضر خدمت ہونا چاہتا ہے۔ ہارون نے اجازت دی، وہ آیا اور ہارون کو تعظیم دی۔ ہارون نے اسے مختلف ملکوں کے بارے میں سوالات کیے جہاں جہاں وہ جا چکا تھا۔ وہ گفتگو کے فن میں ماہر تھا۔ اس نے مختلف ملکوں کی پیداوار، جواہرات اور مصنوعات کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا اور ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے بولا، علی جاں، ہندوستان ایک عجیب جادو نگری ہے، وہاں علم و حکمت کا بڑا شہرہ ہے۔ شاید میری بات پر آپ کو یقین نہ آئے کہ ہندوستان میں ایک ایسی معجون بنائی جاتی ہے جس کے باقاعدہ استعمال سے انسان میں جمانے کی قوت اثر نو بحال ہو جاتی ہے۔ اگر 60 سال کا بوڑھا وہ معجون استعمال کرے تو خود کو 20 برس کا جوان پائے گا۔ کمال ہے، اس علاقے میں طب کے ایسے معجزے بھی ملتے ہیں۔ ہارون نے تعجب سے کہا، حضور اگر پسند فرمائیں تو میں ہندوستان سے وہ معجون تیار کروا کر لا سکتا ہوں۔ سیاہ مؤدب لہجے میں بولا۔ ہارون کے دل میں پہلے ہی اس اشتیاق پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے سیاہ سے پوچھا، وہ معجون تیار کرنے پر کتنا خرچ اٹھائے گا؟ ذیل سبحانی، اس میں بہت سی قیمتی جڑی بوٹیاں اور جواہرات کے کشتے شامل کیے جاتے ہیں، اس کی تیاری پر اخراجات کچھ زیادہ ہی اٹھتے ہیں۔ سیاہ نے بتایا، تمہاری کیا خیال ہے کہ ہم وہ اخراجات ادا نہیں کر سکیں گے؟ ہارون نے درشتی سے کہا، نعوذ باللہ علی جاں، یہ حقیر تو ایسا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ میں نے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ کہیں اہل دربار میں سے کوئی اسے جھوٹ یا غلط نہ سمجھے۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، اہل دربار میں ایسی حرکت کرنے کی جرات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جان بچانے کا حکم دیا ہے۔ بہلول نے چپکے سے کہا، بتاؤ اس پر کتنا خرچ اٹھے گا؟ ہارون نے استفسار کیا، علی جاں اس کے لیے 50,000 دینار درکار ہوں گے۔ سیاہ نے بتایا، رقم دے دی جائے۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا۔ خزانچی نے اس کو رقم دے دی اور وہ روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ایک عرصہ ہو گیا مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ہارون کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی دھوکہ باز تھا جو اس سے فریب دے کر رقم ہتھیا لے گیا ہے۔ ایک روز دربار میں اس شخص کا پھر تذکرہ ہوا۔ ہارون نے متناسب لہجے میں کہا، اس شخص نے کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اگر وہ کہیں ہاتھ لگ جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ رقم وصول کی جائے گی اور اس کم بخت کا سر کاٹ کر بغداد کے دروازے پر آویزاں کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ بہلول بھی دربار میں موجود تھا، وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہارون نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا، بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، اس بے موقع ہنسی کا سبب کیا ہے؟ کیا تم اس گستاخی کی وجہ بیان کر سکتے ہو؟ بہلول کی ہنسی نہیں رکی۔ حضور مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے۔ کون سا قصہ؟ ہارون نے استفسار کیا۔ بہلول نے ہنسی روک کر کہا، اس دھوکے باز سیاہ کا واقعہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا مورخ بڑھیا اور لومڑی کا قصہ ہے، بیان کرو۔ ہارون نے تحکم سے کہا۔ بہلول بولا، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنگلی بلی نے ایک بڑھیا کا پالتو مرغ جھپٹ لیا۔ بڑھیا اس کے پیچھے دہائی دیتی ہوئی دوڑی، ارے ارے پکڑو، اس چھوٹی بلی کو پکڑو، ظالم میرا 2 من کا مرغا لے کر بھاگ گئی ہے، ارے کوئی میری مدد کو آؤ، اس بلی کو پکڑو، کوئی میری مدد کو آؤ، اس بلی کو پکڑو، ہائے میرا نازوں کا بلا مرغ، ارے یہ پورے 2 من کا ہے۔
बिल्ली ने जो बुढ़िया का शोरगुल सुना तो परेशान हो गई और गुस्से से बोली, देखो ये बुढ़िया किस कदर झूठ बोल रही है, ये इतना सा मूर्ख भला 2 मन का है। इत्तफाकन एक लोमड़ी करीब से गुजर रही थी, वो बिल्ली से बोली, बहन तुम क्यों परेशान होती हो, जरा मुर्गे को मुझे दे दो, मैं अभी तोल कर बता देती हूँ कि ये 2 मन का है या नहीं। बिल्ली ने मुर्ग लोमड़ी को दे दिया, इसने मुर्ग दबोचा और यह कहकर गायब हो गई कि बहन बिल्ली बुढ़िया से कह देना कि इसका मुल्क 3 मन का है। हारून अपनी हंसी नहीं रोक सका, अहले दरबार भी मुस्कुराने लगे। हारून बोला, बालोल तुम्हारे इस किस्से ने हमारी अफसरदगी को जायल कर दिया है। खलीफा हारून रशीद अपनी मलका जुबैदा के हमरा शतरंज खेल रहा था, बालोल भी करीब बैठा था। इसी वक्त चौबदार ने सदा दी, एक शिकारी बारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत है। हारून ने इजाजत दी, शिकारी अंदर आया और जमीन चूमकर बोला, मैं खलीफा के लिए एक बहुत उम्दा मछली लेकर आया हूँ। हारून ने जुबैदा से कहा, ये इनाम की आस में मेरे पास ये हदिया लाया है, इसे इनाम में 4000 दरहम दे दिए जाएं तो क्या मुनासिब रहेगा? जुबैदा बोली, नहीं आलीजा, शिकारी का ये मनसब नहीं है कि उसे इतना ज्यादा इनाम दे दिया जाए। आप फौजों और मुअज़्ज़िज़ शहरियों को भी इनामों का राम अता करते हैं, अगर आप इन्हें इससे कम देंगे तो वो शिकवा करेंगे कि ये हम शिकारी के बराबर भी नहीं। अगर ज्यादा देने की रस्म पड़ गई तो खजाना खाली हो जाएगा। ये बात हारून के दिल को लगी और वो बोला, मगर इसको कुछ तो देना है, तो आप इस तरह करें कि शिकारी से पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे मादा है तो कहें हमें ये पसंद नहीं है, और अगर वो कहे नर है तो भी आप कह दें कि ये हमें नहीं चाहिए। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। जुबैदा ने तजवीज पेश की। बालोल ने आहिस्तगी से कहा, शिकारी इतनी दूर से बड़ी आस लेकर आया है, ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर आप इसे नामुराद लौटा दें और रंजीदा हो। हारून ने बहलोल की बात पर तवज्जो नहीं दी और चौबदार से बोला, शिकारी को हमारी खिदमत में पेश करो। शिकारी करीब आया तो हारून ने सवाल किया, इसे शिकारी क्या तो बता सकता है कि ये मछली नर है या मादा? शिकारी ताजीमन झुका और बोला, आली जान, ना ये नर है ना मादा, ये मछली तो मुखन्नस है। हारून बेसाख्ता हंसा और बोला, तुम्हारी हाजिर जवाबी हमें पसंद आई, तुम्हें 4000 दिरहम इनाम में दिए जाएंगे। हजूर का इकबाल बुलंद हो। शिकारी दिरहम लेकर दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रहा था तो एक दिरहम जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी रुक गया और उसने दरहम उठाकर जेब में रख लिया। हारून और जुबैदा भी उसे देख रहे थे। जुबैदा जो इतनी रकम जाने पर अफसुर्दा सी थी, हारून से बोली, आली जा, आपने मुलाहिजा फरमाया कि ये शिकारी किस कदर लालची और कमीना है, इसने 1 दिरहम भी नहीं छोड़ा। क्या हर्ज था कि अगर इसे महल का कोई और मुलाजिम ही उठा लेता। हारून को भी मलका की बात लाई के तवज्जो महसूस हुई। उसने पुकार कर कहा, शिकारी को बुलाया जाए। करीब बैठे हुए बहलोल ने दबी जुबान में कहा, अली जा, मलका के कहने पर शिकारी को ना रोके। हारून ने तवज्जो नहीं दी। तब तक चौबदार शिकारी को बुला लाया और हारून की खिदमत में पेश किया। हारून बोला, ऐ सयाद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी है कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद हैं, अगर इनमें से एक गिर गया है तो तूने ये भी गवारा नहीं किया कि इसे छोड़ दे, शायद वो किसी गरीब को मिल जाए और वो इससे अपना काम निकाल ले। शिकारी ताजीमन झुका और बोला, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अमान है। हारून ने अमान दी। शिकारी मुअद्दिब लहजे में बोला, हजूर ये नाचीज पुश्ते फितरत नहीं है, बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया है था कि इसके एक तरफ आयात कुरानी कुंदा है और दूसरी जानिब आपका इसमें गरामी। मैं नहीं चाहता था कि यह जमीन पर पड़ा रहे और किसी के पांव तले आ जाए और बेअदबी हो। खलीफा को इसकी हाजिर जवाबी ने महसूस किया। उसने खुश होकर हुक्म दिया, शिकारी को 4000 दिरहम और दिए जाएं। शिकारी रुखसत हो गया तो बहलोल ने कहा, अली जा, क्या मैंने आपको नहीं रोका था कि शिकारी को वापस ना बुलाएं? हारून हंसा। बहलोल, आज तो मैंने तुझसे भी ज्यादा दीवानगी का मुजाहरा किया है। तुमने मुझे दोनों बार रोका लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी और मलका की बात पर कान धरने का ये नुकसान हुआ कि 4000 के बजाय 8000 दिरहम खजाने से गए। कहते हैं कि एक बार हारून ने यूनान से किसी हकीम को
बुलवाया। जब वो बगदाद पहुंचा तो हर तरफ से उसका शोरा हो गया। हारून ने उसे दरबार में बड़ी इज्जत दी, जिसकी वजह से उसके उमरा और मुअज्जिजीन शहर हकीम से खास तौर पर मिलने के लिए दरबार गए। बहलोल को भी खबर हुई, वो भी अपनी दीवानगी का लिबास पहने दरबार में जा पहुंचा। देखा कि हकीम दरबार में बड़ी शान से बैठा है, वजीर अमीर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बहलोल कुछ देर चुपका बैठा रहा, फिर हकीम से बोला, आप क्या काम करते हैं? हकीम उसकी हैबत कुदाई देखकर उसे पागल समझा और उसकी हंसी उड़ाने को बोला, जनाब मैं हकीम हूं और मेरा नाम मुर्दा को जिंदा करना है। दरबार में दबी दबी हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। बहलोल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बड़े मजे से बोला, जनाब हकीम साहब किबला बराए करम आप जिंदों के हाल पर रहम करें, उनकी जान बख्शी कर दे, बाकी रहे मुर्दे तो उनको जिंदा करना आपका हदिया है। दबी दबी हंसी कहकों में बदल गई। हारून भी इनमें शामिल हो गया। हकीम इतना खजल हुआ कि वापस यूनान चला गया। हारून ने महल में नोशी सजा रखी थी। वजीर अमीर बैठे थे। मुसलमानों का खलीफा कनीजों के हाथों से जाम में लेकर खुम के खुम लंढा रहा था कि बहलोल में भी वहां आ पहुंचा। उसने खलीफा की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून को उसकी नसीहतें याद आई। नशे की तरंग में उसने पूछा कि इससे पहले कि बहलोल कोई ऐसी बात कह दे जो इसका सर झुका दे, वो पहल करे। उसने बहलोल को देखा और बोला, बहलोल मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? मैं तैयार हूं, बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल ये बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या हराम है? हारून ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहलोल ने कहा, अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले तो? हारून बोला, कोई हर्ज नहीं। बहलोल ने बताया, अब यही शख्स अंगूर खाने और पानी पीने के बाद धूप में बैठ जाए तो कोई मुजायका नहीं, जितनी देर चाहे बैठे। बहलोल ने जवाब दिया, तो फिर बहलोल तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो हराम क्यों हो जाते हैं? हारून ने बड़े फखर से अपना फलसफा बयान किया। अगर इजाजत हो तो मैं भी खलीफा से चंद सवाल कर लूं। उम्मीद है कि इन ही सवालात में खलीफा को अपने सवालात का जवाब भी मिल जाएगा। इजाजत है, हारून झूमता हुआ बोला। बहलोल बोला, क्या आलिजा बताएंगे कि अगर किसी आदमी के सर पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या इसे कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं, खलीफा ने फौरन जवाब दिया। इसके बाद उसके सर पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो क्या उस शख्स को कोई तकलीफ होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हारून बोला। लेकिन बहलोल ने इसे मुतवज्जो किया, अगर इस मिट्टी और पानी को मिलाकर ईंट बनाई जाए और वो इस शख्स के सर पर मारी जाए तो क्या कोई नुकसान होगा? तुम भी अजीब बातें करते हो बहलोल। खलीफा हंसा, उसका तो सर फट जाएगा। तो फिर आलिजा गौर फरमाइए, तो उन्हें मालूम होगा कि जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, इसी तरह अंगूर और पानी मिलकर भी ऐसी चीज बना सकते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल मारी जाती है, इससे बुरे भले की तमीज नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सदा वाजिब की है। हारून का नशा हिरन हो गया और वो मुस्तरिब होकर उठा और पशेमानी से बोला, शराब की ये महफिल बर्खास्त की जाती है। एक रोज हारून हमाम गया तो बहलोल भी हमरा था। हारून को मजाक सूझा तो बहलोल से बोला, बहलोल अगर मैं गुलाम होता तो मेरी क्या कीमत लगती? बहलोल ने बहुत मजे से कहा, आलिजा सिर्फ 50 दिनार। खलीफा को उसकी उम्मीद नहीं थी। उसका नाजुक शाही मिजाज बिगड़ा। हो ना तुम दीवाने, इसकी कदर कीमत का तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अहमद, जानते हो कि ये तहमत जो मैंने पहन रखी है 50 दिनार तो सिर्फ इसकी कीमत है। मैंने भी तो सिर्फ तहमत की ही कीमत लगाई है सरकार, वरना खलीफा की कोई कीमत नहीं। बहलोल ने हंस कर कहा। खलीफा बड़े तजक्कुन और एहतिशाम से शिकार पर रवाना हुआ। अमीर वजीर हमरा थे, गुलाम तीर कमान उठाए साथ साथ चल रहे थे। बहलोल भी मौजूद था। अचानक एक हिरन नजर आया। खलीफा ने फौरन कमान उठाई और हिरन का निशाना लेकर तीर छोड़ा, लेकिन निशाना खता गया। हिरन चौंकड़ियां भरता निगाहों से ओझल हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, ये बहलोल ने बेसाख्ता दाद दी। खलीफा को नागवार गुजरा। गुस्से से बोले, बहलोल तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं आलिजा, ये नाचीज तो ऐसी जिसारत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहलोल ने आजिज़ी से कहा, तो फिर ये दाद किसको दे रहे हो? हारून ने
दरिश्ती से पूछा, जहां पना मैंने हिरन को दाद दी है कि वो आग के तीर से कितनी खूबसूरती से बचा है।